In the previous chapters, we had done the Indus Valley civilization we had discussed, and how were the developments both in the economic and political scene or and the social scene, right? These we had discussed. In the last chapter, the discussion is more centered around the beliefs which were prevalent during that period, and the most common one was, or the most important one was, the Buddhism and Jainism and their development, right? So this is the discussion. This is the main discussion which is there in this chapter, as well as what were the related developments with this development of growth of religions, right? We will see how their ideas, that is the new philosophies which are coming, were compiled in oral and written text, as well as expressed in architecture and sculpture, right? So yes, the new forms of religion came, their philosophies came, they were being adopted, right? They were being patronized by various rulers, and they found a reflection in the architecture and sculpture as well, right? This is indicative of the enduring influence, right? ये जो लाइन है ये आप मेंस में यूज कर सकते हैं, right? कि the prevalence or the, you can say, the prominence of these type of religious doctrines or their ideas in architecture and sculpture, this indicates that how they have endured, how they have survived through the time, right? While we'll be focusing on Buddhism, but it did not develop in isolation. There were several other traditions as well. The sources that historians use to construct all these, but अभी आज तो हमें पता है कि this is Buddhism, इनकी ये doctrines है, इनके ये philosophies है, इनके ये views हैं. But how did we come to know about all this? The sources that historians use to construct include the Buddhist, Jain, and Brahmanical texts, right? Of course, the literary sources, as well as the material remains, which includes the monuments and inscriptions. It could be stupas, it could be temples, it could be sculptures and other things, right? Among the best preserved monuments is the stupa at Sanchi. ठीक है? देखो, stupa is a theme that would be important. ठीक है? थीम वन पढ़ने, या फिर थीम्स जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, थीम्स की एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर थीम इंपॉर्टेंट है. जैसे थीम्स में डिस्कस्ड है अबाउट बुद्धिज्म, अबाउट जैनिज्म, अबाउट वैष्णविज्म, अबाउट शैविज्म, इसका मतलब है ये सब थीम्स इंपॉर्टेंट है. थीम्स में डिस्कस्ड है अबाउट स्कल्पचर, इसका मतलब है ये थीम इंपॉर्टेंट है. एंड आई विल शो टू यू कि कैसे इन्होंने ये थीम्स पिछले 4-5 सालों में बोथ इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस बार बार पूछी है, राइट? एक मैंने पहले क्वेश्चन दिखाया था आपको कि कॉइन्स, while they were prevalent in the Gupta times, but they become lesser prevalent or they lost their importance in the post Gupta time. ठीक है? क्योंकि वो थीम टच्ड थी इस पर्टिकुलर बुक में, इसका मतलब है वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. दैट कैन बी द केस कि हो सकता है इस पर्टिकुलर किताब में उतना मटेरियल अवेलेबल नहीं है, बट आइडेंटिफाइंग द थीम्स, ठीक है, एंड देन जो आप नॉर्मल किताब पढ़ रहे हो उसमें उस थीम को रिलेटेड क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, दैट शुड बी अ प्रायोरिटी कि भी हाँ मुझे ये पता होनी चाहिए, क्योंकि देयर आर हायर चांसेस कि यूपीएससी ये निकाल लेगा कहीं ना कहीं से, राइट? फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग द ग्लिम्स ऑफ सांची. इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन एज सच एग्जाम सेंट्रिक नहीं है, ठीक है. आपका जो योर वर्क वुड बी कि जब आप कल्चर पढ़ोगे उसमें स्तूपा की जो भी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए. स्तूपा की डेवलपमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए. इसमें ऑफ कोर्स थिंग्स आर डिस्कस्ड, बट इट इज नॉट डिस्कस्ड एट दैट लेंथ, ठीक है ना. स्तूपा की डेवलपमेंट मतलब कि मॉडर्न टाइम पे शुरू हुई, अशोका के टाइम पे शुरू हुई, ठीक है. व्हाट वाज द डिजाइन, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ड्यूरिंग दैट टाइम, फिर बाद में क्या क्या ऐड किया गया, कहाँ कहाँ पर वो बने, किस किस राजाओं ने उसको पेट्रन किया, ठीक है, पेट्रोनाइज किया, ये सब पता होनी चाहिए. इसमें जो चीजें डिस्कस्ड है दैट वुड बी मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एंड समवेयर फॉर द पॉइंट फॉर मेंस, ठीक है. So Sanchi in the 19th century story बता रहे हैं ज्यादा, इसमें कुछ important. The most wonderful ancient building in the state of Bhopal are at Sanchi
कानाखेरा अ स्मॉल विलेज। आपको याद यहाँ पे क्या रखना है कि सांची इज इन भोपाल। ठीक है। मेजर एलेक्जेंडर कनिंगम एग्जामिन्ड दीज रूल्स। ठीक है। प्रीलिम्स में पूछ सकता है which of the following archaeologists are associated with which of the following developments। एंड क्योंकि ये थीम्स में बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन। ठीक है। सेकेंडली, नाम वाइज भी पूछ सकता है। हमने अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल और ये सब पहले डिस्कस कर लिए थे, एंड इस साल यूपीएससी ने सवाल पूछ भी लिया था। 2023 में अगर हम 2022 में अगर हमें डिस्कशन कर रहे होते, ठीक है, या फिर फॉर दैट मैटर 2023 प्रीलिम्स के लिए अगर हमें डिस्कशन कर रहे होते ना, तो शायद हम इसको इतना सीरियसली ना लेते, राइट। बट सिंस यूपीएससी हैज माइंड आउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ठीक है, इज मेंशन्ड इन योर थीम्स एनसीईआरटी एंड यूपीएससी इज आस्क्ड इट, दैट मींस इट बिकम्स नाउ इम्पोर्टेंट फॉर अस। एंड अगर यूपीएससी अभी से पूछेगा तो आइदर इट विल बी एन एक्सटेंशन, ठीक है, ऑफ द सेम लाइन, कि वो बदल देगा नाम और फिर पूछेगा कुछ, ठीक है। द थिंग इट कैन बी कि पर्सनैलिटीज दे देगा, एंड वो जरूरी नहीं वो आर्कियोलॉजिस्ट है, राइट, दैट कुड बी पॉसिबल कि वो दे आर पीपल एसोसिएटेड विद द प्रेस, बट यस, names if they are coming in themes they are important, right। The second thing can be कि यूपीएससी इसी का डिटेल्ड वर्जन पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस पर्टिकुलर पर्सन एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। थीम्स पढ़ते हुए स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या होती है कि दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। दिस वर्क इज बीइंग डन थ्रू दीज सेशंस एंड मेक वेरी गुड यूज ऑफ दीज थिंग्स, राइट। डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि या तो ये नहीं पूछेंगे या फिर मुझे जो करना है वो मुझे खुद ही करना है, राइट, कि मैं खुद से डबल मेहनत करूंगा। योर वर्क फॉर एनसीईआरटीज विल बी डन बाय दीज सेशंस, यू नीड नॉट लुक एनीवेयर एल्स, राइट, अपार्ट फ्रॉम दीज सेशन। इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। देन एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है, एक बंदे का नाम आ रहा है एच डी बार्स्टो। इट इज सेड दैट ट्रांसलेटेड बाय, दैट मीन्स आपको याद रखना है कि ही इज एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन, बस इतना हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऑल्दो हम आज स्तूपा को बड़ा ही आइसोलेटेड तरीके से देखते हैं, बट हेयर दे आर शोइंग कि भाई यूरोपियंस का भी खासा इंटरेस्ट था स्तूपा में। जब ये डिस्कवर होना शुरू हुआ या पता चला कि ऐसा कुछ है, तो वेरियस पावर्स व्हिच आर रूलिंग इंडिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम ना, दे शोड वेरी जेन्युइन इंटरेस्ट इन स्तूपा। ऑफ कोर्स देयर इंटरेस्ट वाज फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दैट, बट दे शोड इंटरेस्ट। अब आप ये कहाँ पर यूज कर सकते हो? आइदर यू कैन यूज इन मीन्स जब आप आर्ट एंड कल्चर एंड इट्स द डिक्लाइन ऑफ ऑल दोस थिंग्स, या फिर स्तूपा की जब आप इंपॉर्टेंस डिस्कस कर रहे होंगे वहां पर डिस्कस कर सकते हो, राइट। See, क्या बोल रहा है, 19th century Europeans were very interested in the stupa at Sanchi. In fact, French sought Shahjahan Begum's permission to take away the eastern gateway, which was, ये सब बातें क्यों हुई है, इसका जिस्ट यही है जो मैंने बता दिया कि यूरोपियंस particularly the French and the British, they were very interested in stupa। बस एक लाइन आपने लिखनी है। The rulers of Bhopal, Shah Jahan Begum, and her successor Sultan Jahan Begum, provided money for the preservation of ancient site। बस ये याद रख लेना, इनका नाम एसोसिएटेड है सांची स्तूपा से। जैसे अजंता केव्स, दे आर ऑन विच रिवर? वाघेरा रिवर, ठीक है। हम सब पढ़कर जाएंगे अजंता केव्स के बारे में, बट वी फॉरगॉट कि भाई उसका थोड़ा सा ज्योग्राफी भी देख लेते हैं। यूपीएससी ने ज्योग्राफी पे सवाल पूछ लिया। सांची स्तूपा के रिलेटेड हो सकता है हम सब पढ़कर जाएं, बट दिस पर्टिकुलर स्मॉल फैक्ट विच इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी ना, वो शायद हम मिस कर जाए। ऐसा नहीं कि यूपीएससी डायरेक्ट सवाल पूछेंगे, बट हो सकता है 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, या फिर एक स्टेटमेंट दे दे एंड देन यू माइट बी ट्रबल, ठीक है। या फिर इसको रिलेट कर देगा मे बी अमरावती स्तूपा से, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। बाकी एनसीईआरटी या फिर बाकी किताबों से ये फैक्ट्स आप इग्नोर भी कर दोगे चलेंगे, बट नंबर वन, दीज आर एनसीईआरटीज। नंबर टू, दीज आर दोज एनसीईआरटीज जो यूपीएससी ने पिछले 5 साल में बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस में हाई फोकस में रखी है, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23, पांचों साल में यूपीएससी ने इससे सवाल पूछे, ठीक है। एंड 5 years इज अ डिसेंट अमाउंट, एंड आई वुड से अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर अस टू जज कि भाई हाँ यूपीएससी के फोकस पे है ये चीज, ठीक है ना।
John Marshall dedicated his important volumes on Sanchi to Sultan Jahan. ये सब important नहीं है, इतना याद रखना है. John Marshall is also associated with somewhat with archaeology and all these things. So if the stupa complex had survived, Sanchi आज हमें दिखता है Sanchi stupa, उसकी बात कर रहे हैं. So if it has survived, it is in no small measure due to wise decision. क्योंकि उस टाइम preservation के लिए decision लिए गए. यही सेम चीज अमरावती स्तूपा के लिए नहीं हो पाई, right? And that is why Amravati Stupa could not survive it in very good way. ठीक है, बट सांची सर्वाइव क्योंकि सांची स्तूपा की इंपॉर्टेंस पता चली, प्लस इनिशिएटिव्स वर टेकन, वाइज डिसीजन वर टेकन फॉर इट्स यू कैन से प्रिजर्वेशन. ठीक है, अगेन दिस कैन बी अ थिंग व्हिच यू कैन यूज इन बिजनेस. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में जेनेरिक सवाल आएगा आपके पास, या फिर स्तूपा या फिर एसोसिएटेड आर्किटेक्चर पे सवाल आएगा. ठीक है, उसमें वेर एवर यू वांट टू अप्रिशिएट कि भाई देखो इस चीज से इसकी प्रिजर्वेशन हुई, ठीक है, कि या फिर हाउ इंडिविजुअल इनिशिएटिव हेल्प इन ऑल दीज थिंग, वहां पर आप ये कोट कर सकते हैं. ठीक है, एंड टू गुड लक इन एस्केपिंग द आईज ऑफ, ये कह रहे हैं कि वाइज डिसीजन हुए, प्लस रेलवे कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर वगैरह ने इसके ऊपर गंदी नजर नहीं डाली. ठीक है ना, दैट दे डिड नॉट आई सांची स्तूपा एज अ वे टू फुलफिल देयर एक्सप्लॉयटेशन इनिशिएटिव. ठीक है, exploitative interest, इस कारण से सांची स्तूपा बच गए. One of the most important Buddhist centers, the discovery of Sanchi has vastly transformed our understanding of early Buddha. ये डायरेक्ट आप देखोगे तो दिस कैन बी ए क्वेश्चन इन मेंस. ठीक है, that the discovery of Sanchi has vastly transformed our understanding of early Buddhism. यहाँ पर आप ऊपर जो मटेरियल मिला है, आगे जो मटेरियल मिलेगा यहाँ से, इट इज more than sufficient for you to answer this question. है क्या? It is a complex of structures, a large mound, ये जो है, and other monuments including a temple built in the 5th century. 5th century मतलब 5th century CE AD, right? अब इन्होंने इंट्रोडक्शन करना था तो इन्होंने सांची स्तूपा से इंट्रोडक्शन कर दिया. नाउ दे आर ट्रेसिंग द बैकग्राउंड कि भाई ये कहानी हम आज बात कर रहे हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की, बट वेयर डिड इट ऑल स्टार्टेड वो हमें पता है, राइट? इट वाज द फर्स्ट वन वाज द वैदिक रिलीजन, राइट? एंड उसके बाद ऋग्वेदिक रिलीजन, उसके बाद इट केम द लेटर वैदिक रिलीजन. लेटर वैदिक के टाइम आते आते ट्रेडिशंस बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड, राइट? एंड उसी का एक बैकलैश था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज एसोसिएटेड विद द लेटर वैदिक रिलीजन, उसी का एक बैकलैश था. प्लस देयर वर अदर डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, राइट? ओलिगार्कीज जो हमने बात की थी, ठीक है, वहां पर ये सब डेवलपमेंट्स हो रही थी विच gave a chance to Buddhism and Jainism to flourish. And all of this was happening more or less at the same time. वो कहते हैं ना कि टाइमिंग जब सही है तो चीजें अपने आप, नथिंग कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम इज कमिंग. हमने सुना हो ब्राह्मणिकल रिलीजन में दिक्कतें आ रही थी, वहां पर पीपल वर सीइंग अ वे कि भाई इनसे दूर हो जाए हम किसी तरह. दे वर सीइंग एन ऑल्टरनेटिव, and parallelly you see development of Buddhism and Jainism. Of course these both things complemented each other, and as a result significant patronage or significant support was found for Buddhism and Jainism, right? The first millennial BCE is often regarded. First millennial BCE का मतलब क्या है? 1000 BC to जब आप 1 BC बात करो, राइट? ठीक है, राइट, इज ऑफन रिगार्डेड एज टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में, इवन इन वर्ल्ड हिस्ट्री देयर वर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स. ठीक है, कैसे? इट सॉ द इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स लाइक ज़राथुस्ट्रा इन ईरान, Pomzi in China, Socrates, Plato, and Aristotle in Greece, Mahavira and Gautam Buddha in India. They tried to understand the mysteries of existence and the relationship between human beings and cosmic order. ये कह रहे हैं कि आपने तो जो लेटर वैदिक के थ्रू एक व्यू पॉइंट या एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया था कि until and unless you are seeking the blessings of Brahminical priests, until and unless you are doing these particular sacrifices,
until unless you are born in the first three caste, ठीक है, you cannot be liberated, या फिर आपको वो दर्जा कभी मिलेगा ही नहीं। तो here they think they try to understand the mysteries of existence, कि भाई ये जो बातें की इन्होंने सही भी की कि नहीं की, right? And the relationship between human beings and the cosmic order, इंसान और भगवान में या फिर ये जो ऑर्डर बनाया गया इसमें क्या वो है, रिलेशन है, ठीक है। आपने तो ये बता दिया था ब्राह्मणिकल रीजन के थ्रू कि भाई भगवान ने ही बनाकर भेजा है, ठीक है। तो ब्राह्मण्स विल गेट द हाईएस्ट रिस्पेक्ट, देन कम्स द क्षत्रियास, देन कम द वैश्यास एंड शूद्रास को तो कुछ रिस्पेक्ट मिलेगी। तो भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स वी नो कि इस टाइम पे आयरन वाज गेटिंग पॉपुलर, ठीक है, आयरन का यूज बढ़ रहा है, उस कारण से जो आपका ईस्ट की तरफ या फिर जो बिहार और उत्तर प्रदेश वाला रीजन है उसमें द न्यूअर सिटीज स्टार्ट कमिंग, द पॉलिटिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हैपनिंग, ठीक है। द महाजनपद वर स्टार्टिंग टू डेवलप, एंड ये हमने सारा डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। द न्यू किंगडम्स एंड द सिटीज वर डेवलपिंग, इसको हमने कहा था सेकंड अर्बनाइजेशन, वेयर इज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन वाज द Indus Valley civilization, right? The new kingdom and cities were developing, and social and economic life was changing. This we have discussed in chapter 2 and chapter 3, right? The sacrificial tradition, ये हमने बात की थी कि be it the later Vedic और be it the Rigvedic, ठीक है, वहां पर sacrifices की बात होती थी। Although there was considerable difference कि भाई बात कैसे करते थे। ऋग्वेदिक वॉज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड कि भाई आपकी जो इच्छा है उस हिसाब से कर दो, ठीक है, उस हिसाब समथिंग लाइक दिस। लेटर वैदिक वॉज मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिचुअल्स एज वेल एज कि ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे ये नहीं करेंगे, एज वेल एज द लेवल ऑफ सैक्रिफाइसेस व्हिच स्टार्टेड टू हैपन वो ज्यादा बढ़ गया था इन द लेटर वैदिक टाइम। देयर वर सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस ऑफ थॉट, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस इंक्लूडिंग द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन नोन एज द ऋग वेदा, ये सब बातें कर चुके हैं, ये टाइमलाइन थी। द ऋग वेदा कंसिस्ट ऑफ हिम्स इन प्रेज ऑफ वैरायटी ऑफ डेटी। ऋग वेदा में क्या है, भगवान के लिए जो आपको हिम्स गानी है एंड स्पेसिफिक भगवान के लिए उनका मेंशन किया है, स्पेशली अग्नि, इंद्र एंड सोम। सो थ्री गॉड विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर अग्नि, इंद्र एंड सोम। And उसके बाद during the later Vedic times these gods they become lesser important, and the ones which became more important were Brahma, Vishnu, Mahesh, right? Many of these hymns were chanted when sacrifices were performed. People prayed for cattle, sons, good health, long life, ठीक है, मटेरियल बेनिफिट्स के लिए लोग पूजा या फिर सैक्रिफाइसेस करते थे, ठीक है। यहाँ पर वो डिफरेंस बता रहे हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग कि पहले यानी कि ऋग्वेदिक टाइम्स पर दीज सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड कलेक्टिवली, ठीक है ना, कि मिलकर सब एक पूजा, एक गांव पूरा पूजा कर ले। लेटर some were performed by the heads of households, concentrate होने लगी वो, for the well-being of the domestic unit. More elaborate sacrifices like Rajasuya and Ashwamedh were performed by chiefs and kings. तो राजा बड़े बड़े sacrifice करने लगे, ठीक है। Thus the objective, the methodology and the social inclusion with respect to the sacrifices that changed from ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक। एंड इस साल यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था कि व्हाट वर द सोशल कंडीशंस ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम या फिर ड्यूरिंग द वैदिक टाइम, एज वेल एज उसका हमें कौन सा रिफ्लेक्शन आज के टाइम पर दिखता है, ठीक है। Eastern kings who depended on the Brahmin priests to conduct the ritual. अभी सारी बातें चल रही हैं, देयर कम्स कि भाई ये सब तो बहुत मुश्किल हो रहा है, यू आर नॉट अलाउइंग कॉमन पीपल टू पार्टिसिपेट इन दिस, ठीक है, ये चीजें और मुश्किल होती चली जा रही है। देयरफॉर देयर वाज अ रिजेंटमेंट, उस रिजेंटमेंट में पैरेलल डेवलपमेंट होती है बुद्धिज्म जैनिज्म की, ठीक है, एंड थिंग्स स्टार्टेड टू मूव। बुद्धिज्म जैनिज्म एक अलग डेवलपमेंट है, बट इवन इन ब्राह्मणिज्म द लेटर वैदिक में जो डेवलपमेंट एक आपको देखने को मिलती है, दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ उपनिषद्स। दीज आर द पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट। ये उपनिषद्स भी कहते हैं कि यार वेदास में जो ये सब इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है ना, दिस इज नॉट राइट, राइट, दैट शुड नॉट हैव बीन डन।
तो दे वर ऑल्सो सीकिंग कि भाई क्या है जिंदगी, क्या है इंसान का मरना, क्या है जिंदगी, क्या वेयर आर वी, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, उस टाइप की चीजें इन्होंने बात करनी शुरू कर दी। मेनी आइडियाज फाउंड इन द उपनिषद 6th century BC onwards, तो इस टाइम पर इनका डेवलपमेंट शुरू हुआ, शो दैट पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ and rebirth. Such issues were hotly debated. So, Rigvedic, then you come to later Vedic. यहाँ से जो लास्ट में डेवलपमेंट हो रही है दैट इज उपनिषद। जो उपनिषद थोड़ा सा अच्छी बातें या फिर फिलोसॉफिकल बातें करना शुरू करते हैं, पैरेलली जो डेवलपमेंट हो रही है दैट इज हैपनिंग ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, एंड ये दो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड पीपल स्टार्ट लाइकिंग ऑल दीज थिंग। बट क्योंकि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज सेपरेट कंप्लीटली अ न्यू डोमेन, जो कि जहाँ पे यू कैन से बुद्धा एंड महावीरा फॉर देमसेल्फ पीपल हु हैव रिनाउंस्ड, ठीक है, तो दैट अपील्ड मोर टू पीपल। Thinkers were concerned with understanding and expressing the nature and the ultimate reality. Outside the Vedic tradition, it was asked whether or not there was a single ultimate reality or not. People also began speculating on the significance of sacrificial tradition, right? तो ये सब बातें चलनी शुरू हो गई कि भाई जो आज तक हमें बता रहे थे कि भगवान ने आपको इस तरीके से बनाकर भेजा है और आप बड़े हो वो छोटा है, ठीक है, ये सब सही भी है कि नहीं, राइट? तो इट इज मोर यू कैन से अ रेनेसा टाइप की चीज हो रही है, ठीक है। एक रेनेसा हमारा कब हुआ था? जब हम बात करते हैं सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, ठीक है। एक रेनेसा जब वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो कब हुआ था? जब मिडीवल डार्क एज खत्म होने लगती है और उसके बाद रेनेसा शुरू हुआ, राइट, रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम थीम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट आर वी रीडिंग? वी आर रीडिंग द बैकग्राउंड। इन द बैकग्राउंड वी हैव रेड फर्स्टली भाई क्या चीज थी, देन वी हैव रेड कि भाई क्या नया आया, ठीक है। देन वी आर रीडिंग कि भाई अब क्या क्या डिबेट्स होने लगे। We get a glimpse of the lively discussion and debate from Buddhist text. Buddhist text, ये याद रखना, it mentions as many as 64 sects of school or schools of thought, ठीक है। जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म की आज हम बात करते हैं, these are two, ये कहते हैं और भी थे, ठीक है, ऑब्वियसली दे हैव नॉट सर्वाइव, ना उनको कोई काम सर्वाइव किया होगा, ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर नॉट अवेयर कि भी वो क्या चीज है। Teachers traveled from place to place trying to convince one another as well as lay persons, ठीक है। पहले क्या होता था, इफ यू कंपेयर इट विद ब्राह्मणिज्म, तो ब्राह्मण प्रीस्ट जो है वो बताएगा ये सही है, ये सही है, और इसमें भी तुम you can be a part of this, women cannot be a part of this, untouchable shudras cannot be a part of this. Contrast to that thing, buddhism jainism में क्या हो रहा है, common people या फिर who have adopted buddhism known as teachers, they traveled from one place to, वो घूमते थे, ठीक है, they kept on traveling and telling people कि देखो ये जिंदगी का मतलब है, ठीक है, this is what should be done and all these things, ठीक है, trying to convince one another as well as lay persons। जब संस्कृत बुद्ध या फिर संस्कृत थी वैदिक ट्रेडिशन में, आम बंदे को समझाना ही बड़ा मुश्किल होता था, इवन इफ यू वांट टू कन्विंस देम या फिर टीच देम, द लैंग्वेज इटसेल्फ वाज सो कॉम्प्लिकेटेड कि समझ नहीं आती। दे रिजॉर्टेड टू द सिंपलर लैंग्वेजेस लाइक पाली एंड लेटर प्राकृत, ठीक है, कि आम बंदे को भी समझ आए अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द फिलोसफी और द वे दे अंडरस्टूड द वर्ल्ड। डिबेट्स टुक प्लेस इन कुटागरशाला, लिटरली अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, जस्ट प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। If a philosopher succeeded in convincing one of his rivals, the followers of the latter also became his disciples, obviously common thing, ठीक है। Many of these teachers, including the Mahavira and the Buddha, questioned the authority of the Vedas, कि भाई क्या अथॉरिटी है इनकी एंड किस बेसिस पर ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो एम्फसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी। पहले क्या था कि एवरीथिंग इज डिवाइनली ऑर्डेन्ड, ठीक है, जो भगवान ने बना दिया बना दिया, प्लस अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी
अचीव करना है, यू विल बी डूइंग दैट थ्रू ब्राह्मण्स विल एंड विजडम। ठीक है, उनकी जब तक उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, जब तक यू विल नॉट बी परफॉर्मिंग द सैक्रिफाइसेस, तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, उस टाइप की बात है। प्लस अनटचेबल्स, या फिर जो सबसे लोअर कास्ट उस टाइम पे जो मानी जाती थी, उनको तो कह ही दिया था कि भाई यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू ऑल दीज थिंग्स, राइट। Contrary to that, Buddhism and Jainism emphasized on individual agency, कि हर इंसान अपने आप में इम्पोर्टेंट है, राइट। Suggesting, ये आप यू रिलेटेड टू द कांस कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, राइट, जब एथिक्स में हम पढ़ते हैं। Suggesting that men and women could strive to attain liberation from the trials and tribulations of worldly existence. That means आपको इन सब की जरूरत नहीं है, हर इंसान अपने आप में केपेबल है टू अटेन लिबरेशन। ठीक है, जो भी वो दुख दर्द सह रहा है उससे वो लिबरेशन अटेन कर सकता है। दिस वॉज इन मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट टू द ब्राह्मणिकल पोजिशन wherein we have seen that an individual's existence was thought to be determined by his specific caste or gender, right? It's like अगर आज के टाइम में आपको एक कोरिलेशन दिया जाए, तो लेट्स से द इलिटरेट या फिर लेसर लिटरेट पॉपुलेशन या फिर लेसर अवेयर पॉपुलेशन, वो लोग ये मानकर बैठ गए हैं कि भाई जो भी सरकार करेगी हमें वो मानना है। ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन अ सोशल सोसाइटी, इन अ रूल एंड ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी, ठीक है। लेकिन अगर जो जनता है उसे पता चल जाए कि भाई एक्चुअल डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का रूल, ठीक है, सो इट इज योर विल, इट इज योर विजडम विच शुड डिटरमिन कि भाई कौन रूल कर रहा है, रादर देन यू बीइंग डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन रूलिंग, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आज के टाइम में हमें अवेयरनेस नहीं है, या फिर दे गेट, यू कैन से, लास्ट टाइम पर आकर दे चेंज देयर वोट्स और वट एवर इट इज, ठीक है ना। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है, फ्रीबीज होती है, और यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, दैट इज ऑल समवेयर टेलिंग कि भाई वो लोग अभी भी अवेयर नहीं है, राइट। तो यही उसी टाइप की बातें चल रही। सडनली मान लो आज कोई आता है, वो कहता है कि नहीं देखो भाई तुम्हारी ये शक्ति है, यू आर दैट मच, हैव यू आर हैविंग दैट मच पावर, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, ठीक है। चांद्योग उपनिषद में याद क्या रखना है इसमें कि द नेचर ऑफ द सेल्फ एंड द ट्रू सैक्रिफाइस, ये जो टाइटल्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद चांद्योग उपनिषद। प्रीलिम्स में कैसे पूछ सकते हैं कि द नेचर ऑफ द सेल्फ कोट एंड द ट्रू सैक्रिफाइस आर एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, जैनिज्म, उपनिषद्स, डी नन होगी, ऐसा पूछ सकता है। या फिर दिस उपनिषद, दिस उपनिषद, दिस उपनिषद, दिस उपनिषद, राइट। तो पता होना चाहिए आपको। पता क्यों होना चाहिए? क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन, राइट। नेक्स्ट इज Buddhist texts, how they were prepared and preserved. The Buddha and other teachers taught orally. Of course, पहले को ये तो था नहीं कि बैठ के वो लिखते थे कहीं पर, वो जो बातें होती थी बस उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता, ठीक है। आज सुन ली, कल उसको सुना दी, फिर आगे उसको सुना दी, ठीक है। ऑफकोर्स द श्रुति वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, men and women and perhaps children attended them. None of Buddha's speeches were written during his lifetime. After his death, they were compiled by his disciples at Vishnu. तो ये याद रखना, प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है। एंड व्हेन यू विल सी नन, आपको लगेगा कि यार ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं, तो गलत होनी चाहिए, बट दिस इज ट्रू। जब तक बुद्ध जीवित थे तब तक उनकी कोई भी बात लिखी नहीं गई थी, वो सिर्फ वो जो उन्होंने बताया वो थ्रू ऑडिटरी मैकेनिज्म वो आगे पहुंचता, ठीक है ना। लिखा वो बाद में गया, ठीक है। These are known as the compilations, also known as the three pitakas, three baskets, ठीक है, to hold different types of text. They were first transmitted orally and then written and classified according to भी क्या किसने क्या मतलब है, ठीक है।
So Vinay Pitaka, it deals with the Vinay Pitaka and Sut Pitaka. They were Vinay Pitaka and Sut Pitaka. They were composed during the first Buddhist council. ठीक है, at Rajgriha. ठीक है, and it was under the patronage of Ajat शत्रु. ठीक है, यहाँ पर विनय पिताका और सुत पिताका को कंपाइल किया गया. विनय पिताका बात किसकी करता है कि भाई मोनेस्टिक ऑर्डर में या फिर मोनेस्ट्री में संघा में क्या रूल्स चलेंगे. ठीक है, सुत पिताका किसकी बात करता है, अबाउट द बुद्धास टीचिंग्स, राइट. अभिधामा पिताका किसकी बात करता है, फिलोसॉफिकल मैटर्स या फिर रिलीजियस मैटर्स की. सो विनय पिताका इट टॉक्स अबाउट द मोनास्टिक कोड, याद रखना. ठीक है, सुत पिताका इट टॉक्स अबाउट द सेइंग्स ऑफ बुद्धा, ऐसे ऐसे याद रख लेना. अभिधामा पिताका इट टॉक्स अबाउट द रिलीजन और द फिलोसफी. ठीक, Vinay Pitaka and Sut Pitaka, they were compiled in the first Buddhist council. The Abhidhamma Pitaka, it was compiled in the third Buddhist council, right? It was in Patliputra. The third Buddhist council was in Patliputra, and it was patronized by Ashok, right? Later commentaries are also added to these texts. तो ये सारे पाली टेक्स्ट हैं. Other important Pali texts were Dipavamsa and Mahavamsa. As Buddhism traveled to new regions like Sri Lanka, Dipavamsa, literally the chronicle of the island, as well as Mahavamsa, the great chronicle, were written. See, literature एक थीम है जो आपको सब्सटैंशियली आपके दूसरे जो आप सोर्स पढ़ेंगे उससे पढ़नी पड़ेगी. एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म स्पेशली इज दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉपिक जिसको आप, यू कैन नॉट से कि मैंने बस एक थीम्स पढ़ ली तो हो गया. मैंने उसको आपको डिटेल में उसकी लिटरेचर, उसका आर्किटेक्चर, हु पेट्रोनाइज्ड इट, व्हाट वर द आइडियाज, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्ट्स, ठीक है, उन सब का आइडिया आपको होना चाहिए. ठीक है, it contain the renal histories of Buddhism, also contain the biographies of Buddha. Then Buddhism spread to East Asia. ईस्ट एशिया मतलब चाइना, जापान, साउथ कोरिया, उस वाले एरिया में. Pilgrims such as Fahian, Fahim, and Xuanzang, मतलब Yunsan, traveled all the way from China to India in the search of texts. They took back to their own country. These they took back to their own country, translated where they were translated. बाहर वाले लोग इधर आए बुद्धिज्म को जानने. इंडिया से जो बुद्धिस्ट टीचर्स थे वो बाहर गए. ठीक है, एंड दैट इज वाई बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ. तो अगर हम देखें ऊपर वाले देश, दैट इज चाइना, साउथ कोरिया, जापान, वहां पर जो रिलीजन स्प्रेड हुआ, दैट वाज द हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, और सॉरी महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जिसको ग्रेट व्हीकल या फिर ग्रेटर बुद्धिज्म कहते हैं. ठीक है, जो नीचे डाउन साउथ, जो साउथ ईस्ट एशिया में, म्यांमार वगैरह में जो स्प्रेड हुआ, श्रीलंका में जो स्प्रेड हुआ, उसको हम कहते हैं हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म या फिर द थेरवादा बुद्धिज्म, राइट. Buddhist texts were preserved in manuscripts for several centuries in different parts of Asia. Modern translations have been prepared from Pali. All these we know, right? So इसमें भी काफी इंफॉर्मेशन है. पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंटली या फिर बहुत टिप्स पर पता होनी चाहिए आपको. इसमें से क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए भी बन सकता है ऑब्वियसली, राइट, एंड मेंस के लिए भी आपको लिखने को कहा जा सकता है, बोथ डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली, कि elucidate the significance as well as the scope या फिर कुछ भी, ठीक है, of the Buddhist literature, तो आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, देन अब बात चल रही है उपनिषद की और बुद्धिज्म की, जैनिज्म की, और दो और फिलोसफीज जो उस टाइम में कॉमन थी. दैट वाज वन वाज द आजीविका फिलोसफी. ये लोग कौन थे, ये फेटलिस्ट थे. फेटलिस्ट मतलब फेट में बिलीव करते थे. ये कहते थे कि देखो ये सब बातें छोड़ो, ठीक है, जो लिख दिया गया है किस्मत में वही होना है.
तुम कुछ भी ट्राई कर लो, उसके अलावा कुछ होने ही नहीं वाला, राइट? एंड द इम्पोर्टेंट टीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलीजन वाज मखाली, right? It says pleasure and pain measured out at its cannot be altered in the course of संसार ट्रांसमाइग्रेशन, it can neither be lessened or increased, ठीक है? इसका मतलब है कि भाई जो हो रहा है वैसा ही होना है, राइट? दूसरी जो फिलोसफी थी दैट वाज द चारवाक फिलोसफी। चारवाक फिलोसफी ये कहती थी कि ये बड़ी बड़ी बातें बंद करो, ठीक है? द वर्ल्ड इज सेंटर्ड अराउंड मटीरियलिज्म, ठीक है? कि जिंदगी में आए हो, खाओ पियो मौज करके चले जाओ, राइट? एंड व्हाट वाज द फिलोसोफर एसोसिएटेड विद दिस? अजीता केसाकाम्बलिंग, राइट? इट सेज दैट द ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ फोर एलिमेंट्स, ठीक है? एंड जो आप बात करते हो द फिफ्थ एलिमेंट की, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है? आप जो जितनी भी ये उल्टी सीधी बातें करते हो या बड़ी बड़ी बातें करते हो, दे आर जस्ट एम्प्टी लाइज। The first teacher, that is the Ajivikas, belonged to the tradition of Ajivikas. They have often been described as fatalists, those who believed that everything is predetermined. The second one, that is the Charvak, इनको लोकायात्स भी बोलते थे, ठीक है? यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज मटीरियल। तो आजीविकास फेटलिस्ट, ठीक है? दे आर द वन हु सेज एवरीथिंग इज प्रीडिटर्मिन्ड। चारवाक या फिर लोकायत, दे आर द वन हु से बिलीव इन मटेरियल, ठीक है? बड़ी बड़ी बातें छोड़ो और खाओ पियो और निकल जाओ, राइट? टेक्स्ट फ्रॉम दीज ट्रेडिशंस हैव नॉट सर्वाइव्ड, सो वी नो अबाउट देम फ्रॉम ओनली द वर्क्स ऑफ अदर ट्रेडिशंस। कि बुद्धिज्म ने उनके बारे में बता दिया, जैनिज्म ने उनके बारे में बता दिया, तो हमें इनके बारे में पता नहीं था। इनका खुद का कोई भी टेक्स्ट सर्वाइव नहीं किया। एंड अगर ये स्टेटमेंट यूपीएससी आपको दे देता, शायद आपको प्रीलिम्स में डाउट क्रिएट हो, ठीक है ना? दैट इज व्हाई इट हैज बीन हाइलाइटेड इन पिंक, कि भी ध्यान रख के जाना, ये सही स्टेटमेंट है, राइट? ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू द मैसेज ऑफ जैनिज्म महावीरा। महावीरा, ऑफ कोर्स यू नो कि महावीरा वाज द 24th तीर्थंकर। उससे पहले इट वाज पार्श्वनाथ, द फर्स्ट वन वाज ऋषभा। द फर्स्ट 23 तीन जो सारे तीर्थंकर्स थे, ठीक है, उनको एक सिंबल से एसोसिएट किया जाता था। महावीरा वाज एसोसिएटेड विद लायन, ठीक है? 23rd जो पार्श्वनाथ थे, उन्हें एसोसिएट किया जाता था सरपेंट। और जो फर्स्ट वन ऋषभ थे, उन्हें एसोसिएट किया जाता था बुल से। 1 to 23 की जो फिलोसफीज थी दैट वाज दैट एक्सेप्ट सेलिबेसी। तो चार जो कोर ट्रूथ थे उन्होंने दिए थे, ठीक है? कि अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, वो सब उन्होंने दिए थे। 24th तीर्थंकर जो आए महावीर, उन्होंने इसमें ऐड किया सेलिबेसी, राइट? द 5 vows, ठीक है? The basic philosophy of the Jains was already in existence in the North India before the birth of Vardhaman Mahavira, who came to be known as Mahavira. In the 6th century BC, he was preceded by 23 other teachers or Tirthankars. Tirthankar का literal meaning क्या है? कि those who guide men and women across the river of existence। verbatim यूपीएससी ये पूछे, ठीक है? एंड यूपीएससी आपको कंफ्यूज कैसे करेगा? तीर्थंकर, इट मीन्स, ठीक है? एक ये होगा, और तीन जो बाकी ऑप्शन होंगे वो भी बहुत यू नो क्लोज होंगे, बहुत कंफ्यूजिंग होंगे। कि इट मीन समवन हु हैज renowned, it means someone who has extinguished his desire, it means someone who has attained nirvana, ठीक है? इट मीन्स समवन हु हैज ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड। तो आपको एक बहुत क्लियर रखना है कि भाई तीर्थंकर का मतलब है those who guide men and women across the river of existence। The most important idea in Jainism is that the entire world is animated। इस साल का प्रीलिम्स का सवाल है, ठीक है? Exactly similar। Even stones, rocks, and water have life। Non-injury to living beings, especially humans, animals, plants, and insects, is central to Jain philosophy। Verbatim ये सवाल पूछा यूपीएससी ने इस साल।
ठीक है, दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है कि इस बुक को यूपीएससी ट्रैक में रख रहा है। और अभी भी काफी एरियाज इस बुक में से बाकी हैं जो यूपीएससी ने नहीं पूछे, एंड दैट मीन्स इट मेक्स अ केस दैट दिस बुक इज गोइंग टू, वो मतलब दिस बुक से मेरा मतलब है थीम्स एंड एनसीईआरटी 6 7 8 दे आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, राइट। In fact, the principle of ahimsa emphasized within Jainism has left its mark on Indian thinking as a whole. हमें पता ही है वो, right? According to Jain, the cycle of birth and rebirth is shaped through karma. जैसा आपका कर्मा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ चलेगा। और इफ यू वांट टू ब्रेक दिस साइकिल, अगर आपको आज आपने पूरा काम कर दिया है, यू वांट कि भाई अगले जन्म में मुझे इसकी सजा ना मिले, ठीक है, हाउ विल यू डू दिस थिंग? asceticism एंड पेनेंस दैट इज गोइंग टू एक्सट्रीम्स, ठीक है। 10 दिन खाना नहीं खाना, कपड़े नहीं पहनने, जाके उधर ऊपर हिमालय में जाके आई विल डू मेडिटेशन, ठीक है, उस टाइप की चीजें दे आर रिक्वायर्ड, free oneself from the cycle of karma. This can only be achieved by renouncing the world. Therefore, monastic existence is a necessary condition for salvation. ये सब कोर जैनिज्म की फिलोसफी आपको याद रखनी है। वेयर एज ऑन द कॉन्ट्ररी, बुद्धा की फिलोसफी क्या थी कि भाई ये पेनेंस और एक्सट्रीम्स में दुनिया नहीं चलती है, ठीक है। द पाथ इज ऑफ द पाथ ऑफ मध्यम मार्ग और मॉडरेशन, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग चीजें चलेगी, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द रियल लाइफ, राइट। जैन monks and nuns took 5 vows to abstain from killing, that is ahimsa, that is they will not steal, asteya, observe celibacy, brahmacharya, and abstain from possessing property, aparigraha, right? क्योंकि जैनिज्म वाज सो मच इनटू कि भाई नॉन वायलेंस और अहिंसा करनी है, दैट इज व्हाई दे आल्सो सेड कि भाई कीड़ों को भी नहीं मारना, ठीक है। दैट मींस एग्रीकल्चर वुड बी डिफिकल्ट, एंड एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर्स डिड नॉट therefore adopt Jainism to that extent. They were more inclined towards Buddhism, and trader or the merchant community was the one which got inclined towards Jainism. एक बस ये याद रखना, दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, सॉरी जैन, ठीक है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट जैनिज्म, उसकी फिलोसफी क्या थी, कैसे ये स्प्रेड किया। ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया, like Buddhist, Jain scholars produced a wealth of literature in variety of languages, Prakrit, Sanskrit, and Tamil. For centuries, manuscripts of these texts were carefully preserved. Some of the earliest stone sculptures, तो लिटरेचर के थ्रू एज वेल एज स्कल्पचर के थ्रू एज वेल एज आर्किटेक्चर के थ्रू एज वेल एज जो पेट्रोनाइजेशन किया गया था, ठीक है, और बाय द डिफरेंट गंगा डायनेस्टी ने, कदम्बा डायनेस्टी ने, राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने, इन सब ने जो पेट्रोनाइज किया, ठीक है, एज वेल एज चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उस कारण से जैनिज्म सर्वाइव किया। सम ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स वर associated with religious traditions were produced by devotees of the Jain Tirtha, right? ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया, लिटरेचर एक थीम है जो आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करनी पड़ेगी फ्रॉम द रेफरेंस टेक्स्ट यू आर रेफरिंग। नेक्स्ट वी कम ऑन टू बुद्धा। ओवर द सेंचुरीज द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म स्प्रेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, इन सब देशों में फैला, ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट द बुद्धिस्ट टीचिंग? आज तो हम कहते हैं कि लॉर्ड बुद्धा ने ये कहा, लेकिन पता कैसे चली? इट इज बाय ट्रांसलेटिंग एंड एनालाइजिंग द बुद्धिस्ट टेक्स्ट as well as translating or understanding or reconstructing various hagiographies. Hagiographies क्या है? जो अलग अलग संतों के बारे में किताबें लिखी जाती थी। They often praise the saints' achievements and may not always be literally accurate, क्योंकि obviously वो praise ही करेंगे। जैसे हम बात करते हैं edicts की, inscriptions की, ठीक है, क्योंकि वो राजा के द्वारा पेट्रोनाइज थे, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कभी भी आपको सरकार की कमियां थोड़ी मिलेंगी, राइट। So that means they may not be literally accurate, ठीक है। Many of these were written down at least a century after the time of Buddha in an attempt to preserve memory. अब ये स्टोरी बता रहे हैं कि he was born as सिद्धार्थ, ठीक है, son of chief of साक्या clan, ठीक है। फिर इन्होंने देखा कि भाई
मतलब काफी राजे महाराजाओं की तरह ही यूज्ड टू लिव इंसुलेटेड फ्रॉम द हार्श रियलिटी। वन डे ही परसुएडेड हिज चैरियटर, जो इनके घोड़े का नाम था, नहीं, जिस घोड़े पे ही वेंट, द हॉर्स नेम वाज कंथक, ये याद रखना, एंड द चैरियटर नेम वाज चंदा। Right, this you should remember. Persuaded his charioteer to take him into the city. His first journey into the world was traumatic. He was shocked beyond any measure, deeply anguished when he saw an old man, a sick man, a corpse. तो चार चीजें देख के बेसिकली लॉर्ड बुद्धा वॉज डिस्टर्ब्ड। वन वॉज ओल्ड मैन, वन वॉज अ सिक मैन, वन वॉज अ कॉर्प्स, एंड अनदर वॉज द ascetic person, ठीक है, जो बंदा तप कर रहा है, ठीक है। he realized in the moment that the decay and destruction of the human body was inevitable, कि भाई इतना अगर दुख दर्द है दुनिया में, इसका मतलब है that the destruction of human body वो होना ही होना है, ठीक है। he also saw a homeless person। ये तो बात ही क्यों है। Siddhartha decided that he too would adopt the same path soon after he left the palace and set out in the search of truth। ठीक है, तो his birth associated with Lumbini, उसका सिंबल क्या है, लोटस। when he left, उसका सिंबल क्या है, हॉर्स, उसको कहते हैं रिनाउंसिएशन या फिर महाभिनिष्क्रम। when he attained nirvana, ठीक है, उसको कहते हैं निर्वाणा या फिर एनलाइटनमेंट, उसका सिंबल है बोधि ट्री। when he gave his first sermon in सारनाथ, ठीक है, उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, उसका सिंबल क्या है, व्हील। when he died at कुशीनगरा, उसका सिंबल क्या है, स्तूपा, इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। राइट। सिद्धार्थ एक्सप्लोर्ड सेवरल पाथ्स इंक्लूडिंग बॉडी। तो ये स्टेटमेंट भी यूपीएससी दे सकता है, ठीक है ना, कि बिफोर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मध्यमान, बुद्धा हिमसेल्फ हैड एक्सप्लोर्ड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एसेटिज्म, ठीक है, या फिर पेनेंस। सिद्धार्था एक्सप्लोर्ड सेवरल पाथ्स इंक्लूडिंग बॉडीली मॉर्टिफिकेशन which led him to situation of near death. Abandoning these extreme methods, he meditated for several days and finally attained enlightenment, which is known as nirvana. After this, he came to be known as the Buddha or the enlightened one. For the rest of his life, he taught Dhamma or the right path of righteous living. And you can also relate it to ki what sort of influence it had on Ashok, right? इस कल्चर के बारे में बात की हुई है, डिपार्चर ऑफ द बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस। The Buddha's teachings have been reconstructed from stories mainly found in Pitaka. Sutta Pitaka talks about the Buddha sayings, right? Vinay Pitaka talks about the monastic code. Sutta Pitaka talks about the Buddha sayings. Abhidhamma Pitaka talks about the philosophy. Right? Yeah, these first two were compiled in the first Buddhist council. This one was compiled in the third Buddhist council. ये important है. Although some stories describe his miraculous powers, others suggest that Buddha tried to convince people through reason and persuasion rather than through display of supernatural power. ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये आप GS1 में भी लिख सकते हैं, ये आप GS4 में भी यूज कर सकते हैं, ये आप एसए में भी यूज कर सकते हैं। मान लो बात हो रही है अबाउट द सुपरस्टिशंस एंड ऑल इन द प्रेवलेंट सोसाइटी, तो आप यू कैन कोट ऑल दीज थिंग्स। These stories were narrated in the language spoken by the common people। बताएंगे आपको, पाली and later प्राकृत वगैरह यूज हुआ था, ठीक है। According to Buddhist philosophy, important, very important. The world is transient, anik, and constantly changing. It is soulless, anat, as there is, whereas Jainism says हर चीज में soul है, Buddhism says world is soulless, as there is nothing permanent or eternal in it, ठीक है।
ये याद रखना, ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं इनके मतलब। Within this transient world, sorrow, dukh is intrinsic to human existence. It is by following a path of moderation between penance and self-indulgence, human beings can rise above these worldly troubles. In the earliest forms of Buddhism, whether or not God existed was irrelevant. जब पूछा गया आपको क्या लगता है भगवान है कि नहीं है, भगवान बुद्ध कहते थे ये क्वेश्चन ही मेरे लिए इम्मटीरियल, ठीक है ना। माई होल फोकस इज सेंटर्ड अराउंड जो दुनिया में जो दुख है, ठीक है, उनको कैसे दूर किया जा सकता, ठीक है। Whereas both rejected the authority of Vedas, Buddhism was silent on God, and Jainism said that yes, God exists, ठीक है, but Jinnah has a higher position than God, ठीक है। ये बस याद रखना इस तरीके से, ठीक है। बुद्धिज्म की क्या फिलोसफी थी? यस, दैट देयर इज sorrow in the world. Secondly, that the root cause of sorrow is desire. Thirdly, that yes, this desire or sorrow can be ended. Fourth is कैसे एंड करोगे आप? अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। 8 चीजें फॉलो करो एंड यू विल एंड दिस थिंग। दिस इज excerpt from Sutta Pitaka. Sutta Pitaka में स्टोरीज थी, तो इट इज अबाउट द एडवाइस गिवन बाय बुद्धा टू अ वेल्दी हाउस होल्डर नेम सिंगहला। बस ये इतना याद रख लेना। प्लस समानस का मतलब क्या होता है? दोज हु हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड। The Buddha regarded the social world as a creation of humans rather than of divine origin. ये in contrast to the Vedic thought कि भाई भगवान ने सब बनाकर भेजा, भगवान ने ये social stratification बना के भेजी। Therefore, he advised kings and Gapatis, car landlords, to be humane and ethical. Individual effort was expected to transform social relations. Right? कि भाई ह्यूमेन बनो, एथिकल बनो, ठीक है ना। एंड दिस वर्ल्ड इज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंड बाय being ethical, by being humane, you will transform the world for the better. Buddha emphasized individual agency and righteous action as a means to escape from the cycle of rebirth. वहां पर क्या कहा था कि पेनेंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जैनिज्म में, इफ यू वांट टू एस्केप द साइकिल ऑफ कर्मा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या है कि अच्छे काम करो, फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन एनलाइटनिंग अदर्स, फोकस ऑन हेल्पिंग अदर्स, ठीक है, एंड यू विल escape the cycle of birth and rebirth. And it is self realization and nibbana. Nibbana है क्या? What is the literal meaning of nirvana? When you do all these things, ठीक है, you will escape the cycle of birth, rebirth, and karma, and you will attain nibbana. What is nibbana? It literally means extinguishing of the ego and desire, thus end the cycle of suffering for those who renounce the world. ये यूपीएससी वर्बेटिम पूछ चुका है। निब्बाना as stated in the Buddhist philosophy means, ठीक है। फिर वही है, वहां पर 3-4 ऑप्शन क्लोज ऑप्शन दिए हुए थे। तो लिटरल मीनिंग क्या है कि इट इज टॉकिंग अबाउट the extinguishing of the ego and the desire. Be lambs unto yourself, as all of you must work out your own liberation. So this was the, you can say, the philosophy of the original Buddhist thought, Heelian Buddhism, ठीक है ना, और the Theravada Buddhism, ठीक है ना। Later, when the Mahayan Buddhism came, तो महायान बुद्धिज्म ने कहा कि rather than focusing on individual liberation, there are certain people called as bodhisattva, जो कि खुद they have attained the knowledge, but rather than just stopping there or rest करने के बजाय they will help other people in attaining liberation, thus bringing the concept of universal liberation. Then how did the message spread? There grew a body of disciples of the Buddha. He founded a Sangha, an organization of monks, which too became teachers of Dhamma. They lived simply, possessing only the essential requisites. As they lived on alms, मतलब
whatever other people provided them for their existence, they were called as भिक्षुस। हम कहते हैं ना भिक्षा देना, ये उस टाइप की थी। ठीक है, भिक्षुस दे वर्ड। इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड इनटू द संघा, याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट मान लो ये दे दे यूपीएससी की इनिशियली इन बुद्धिस्ट ऑर्डर ओनली मेन वर अलाउड। ठीक है, आपको लगेगा गलत है, बट दिस इज ट्रू। बट लेटर वुमेन ऑल्सो केम टू बी एडमिटेड। एंड इसमें मेजर रोल किसका था? आनंदा का, जिन्होंने बुद्धा को कहा था कि भाई ऑल्सो अलाउ, प्लीज ऑल्सो अलाउ वुमेन। द फर्स्ट women to be included in this was Buddha's stepmother, foster mother was Mahapajapati Gautami, was the first woman to be ordained as bhikkhuni. Many women who entered the Sangha became teachers of Dhamma and went on to become the theories or respected women. 2023 या 22 में यूपीएससी ने ये पूछा था, आई गेस 23 में जो एनडीए का पेपर हुआ था, उसमें यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछा व्हाट इज थेरीज। ठीक है, फिर उसमें एक ऑप्शन था रिस्पेक्टेड वुमेन, तीन और ऑप्शन रहा। तो सी, इस पेज में से अगर हम देखें, निब्बाना से पूछ लिया है इन्होंने, एंड थेरी से पूछ लिया। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस बुक इज ऑफ utmost importance. The Buddha's followers came from many social groups, including the kings, wealthy men, Gapati, and humble folk. Once within the Sangha, all were regarded as equal. So this was one of the difference vis-a-vis the Brahminical religion. The internal functioning of the Sangha was based on tradition of Ganas and Sangha. That means debates and discussions के through होती थी, rather than you being imposed by a specific thought कि भाई ये बड़े साहब ने कह दिया तो वही होगा। ठीक है ना। गनाज एंड संगाज मीन द oligarchies जिसकी हमने बात की थी, कि जहां पर इट वाज मेनी राजाज, राइट। सो debates and discussions were encouraged. So they are saying कि internal functioning of the Sangha was based on the tradition of Ganas and Sangha. वर्बेटिम अगर यूपीएससी आपको ये स्टेटमेंट दे देना, हो सकता है आपको ये समझ भी ना आए कि बोल क्या रहा है। ठीक है, बट ये ट्रू, वेयर कंसेंसस वाज अराइव्ड थ्रू डिस्कशंस, इफ दैट फेल्ड डिसीजंस वर टेकन बाय ये कॉन्फ्रेंस, राइट। देन थेरीज आर द रिस्पेक्टेड वुमेन, उनकी जो गाथा है, उनकी जो स्टोरी है, उनको कहा जाता है थेरी गाथा। द यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट पार्ट ऑफ सुत्त पिताका कंपोज्ड बाय भिक्षुनीज provide an insight into women's social and spiritual experiences. पूना, दासी और स्लेवन, बस इतना याद रखना, कुछ नहीं है। Then they're talking about rules for monks and nuns laid down in, I told you na, Vinay Pitaka is about the monastic code, Sut Pitaka is about the stories or the sayings of Buddha, अभिधामा पिताका इज अबाउट द फिलोसफी। ठीक है, तो विनय पिताका में कि भाई मोनिस्टिक कोड क्या होगा, उसमें क्या रूल्स होंगे, उन सब की बात की गई है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस इतना याद रखना ना। एक बार पढ़ना हो पढ़ लेना कि रूल्स का मतलब क्या होता है, राइट। अदरवाइज इसका कुछ एमसीक्यू या फिर इट कैन नॉट बी आस्क्ड इन एन एग्जाम पर्सपेक्टिव। Buddhism grew rapidly both during the lifetime of the Buddha and after his death, as it appealed to many people who were dissatisfied with the existing religious practices and confused by the rapid social changes. The importance attached to the conduct and values, this was emphasized in Buddhism, rather than you claiming superiority on the basis of birth, and your emphasis on metta, fellow feeling important, ठीक है, and karuna, compassion important. इस कारण से लोग they were drawn into Buddhist fold. तो अब हमने बात कर ली है about Buddhism, about Jainism. Next, the theme which they have touched upon is stupas. ठीक है, from earliest stupas they started during the modern times and they went on till the post-modern time, right? Of course, modern times का starting हुई थी तो सिंपल थे, ठीक है, धीरे धीरे और गेटवेज ऐड हुए और स्कल्पचर्स ऐड हुए और तोरन्स ऐड हुए, ठीक है, सर्कुलेम्बुलेटरी पाथ, प्रदक्षिणा पथ और ऐड हुआ, उस टाइप की चीजें ऐड हुई, राइट। From earliest times, people tended to regard certain places as sacred. These included sites with special trees or unique rocks. These sites with small shrines attached to them
और समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज चैत्य। तो जहां पर पूजा वगैरह हो सके उसको चैत्य बोला है। तो चैत्य मीनिंग अ फ्यूनरल फायर एंड बाय एक्सटेंशन अ फ्यूनरली मॉन्क। ये बस मैं बैठे में आपको याद है। देखो, चैत्य मतलब जहाँ पर आप अलग अलग प्रकार से पूजा कर पाओगे, ठीक है। टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, ये कुछ ऐसा चलता है, स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होता है। caves they can be viharas, they can be chaityas, they can be individual viharas and chaityas, ठीक है। जिस केव में एक बुद्धा का माउंट नहीं है पीछे, ठीक है, उसको आप कह दोगे विहारा, ठीक है। दैट मीन्स कि वहां पर पूजा वगैरह नहीं करनी, वहां पर जाओ और रेस्ट कर लो। जिस केव में आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा उसको आप बोल दोगे चैत्य, राइट। तो caves can be viharas, caves can be chaitya. Buddhist literature mentions several chaitya. It also describes other places associated with Buddha. ये सारी प्लेसेस आपको पता है, लुम्बिनी, कुशीनगर, बाराबर, बोध गया, ये सब आपको इम्पोर्टेंट है एंड दिस शुड गो इन योर फोल्डर, राइट। अजंता, जुन्नार, नासिक, नासिक केव्स, कार्ले केव्स, नागार्जुना कोंडा केव्स, अमरावती, all these are important places associated with the Buddhist sites, right? He was born in Lumbini, attained enlightenment, sermon at Sarnath, Nibbana at Kushinagar. Gradually, each of these places came to be regarded as sacred. We know about that about 200 years after the time of Buddha, Ashoka erected a pillar at Lumbini. इसको रुमेनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है, तो याद रखना तराई रीजन में है ये। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर इंस्क्रिप्शन, अशोका इलेक्टेड अ पिलर एट लुम्बिनी टू मार्क द फैक्ट दैट ही हैड विजिटेड द प्लेस, ठीक है। when we are discussing the old the sixth wali NCERT, even then we are discussing this thing. Why were stupas built? There were other places too that were regarded as sacred. This was because the relics, जो remains थे बुद्धा के, as his bodily remains or object were used and buried there. These mounds are known as stupas, ठीक है। ये स्टेटमेंट पूछा यूपीएससी ने इस साल, सेकेंड ईयर स्टेटमेंट इसी साल, ठीक है। The tradition of erecting stupas may have been pre-Buddhist, but they came to be associated with Buddhism. इस तरह का स्टेटमेंट क्या था कि द ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म draws या द ट्रेडिशन ऑफ स्तूपास draws its origin to Buddhism, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो आप देख रहे हो दो लाइन में से दो स्टेटमेंट उठा लिए, यानी एक वो वोटिव करके जो स्टेटमेंट था वो पीछे एक चैप्टर से उठाया गया, right? Since they contain relics regarded as sacred, entire stupa came to be venerated as an emblem of both Buddha and Buddhism. According to a Buddhist text known as Ashok Avadan, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अशोक अवदान, 2022 में एक सवाल था, where it was asked which of the following are Jain texts, और चार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट उधर दे दिए गए, राइट। जिसमें से एक टेक्स्ट था अवदान, राइट। इफ यू आर अवेयर कि अवदान इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, वो आप डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं एंड यू वुड हैव राइट दैट आंसर। दैट मींस इस स्टेटमेंट पे सवाल बना चुके हैं, इस स्टेटमेंट पे सवाल बना चुके हैं, इन स्टेटमेंट को यूज किया जा चुका है इन फ्रेमिंग अ क्वेश्चन, ठीक है। नाउ यू विल रियलाइज की इंपॉर्टेंस क्या है इस किताब की। According to Buddhist text known as Ashoka, Ashoka distributed portions of Buddhist relics to every town, important town, and ordered the construction of stupas over them. ऐसा कहा जाता है, of course this would be an exaggeration, कि अशोका ने 84,000 स्तूपास बनवाए। ऑफ कोर्स इतने नहीं बनवाए होंगे, बट लेट्स से 84,000 नहीं तो 100 तो बनवाए। By the second century BC, a number of stupas, including those at Bharhut, Sanchi, and Sarnath, had been built. ठीक है। अशोका स्टार्टेड इट, लेटर दे वर मॉडर्न, राइट। ये महापरिनिब्बाण सूत्ता पाठ सूत पिताका पे बात की गई है। इसमें आपको बस ध्यान क्या रखना है कि
तथागत इज अनदर नेम फॉर बुद्धा। सिंपली ये पूछ सकता है आपसे। एंड थूपा इज द word for another word for stupa, right? How were stupas built? Inscriptions found on the railings and pillars, they record donations of kings, of workers who financed one of the gateways. किसी ने गेट बनवा दिया, किसी ने कुछ बनवा दिया, तो इन सब का रिकॉर्ड उधर मिले। Hundreds of donations were made by women and men who mentioned their names, sometimes adding the name of the place. Bhikkhus and bhikkhunis also contributed. तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? स्तूपास की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्तूपास में हमने किस चीज की बात की कि पहले क्यों बनाया गया इन्हें, ठीक है। दे कंटेन द बॉडीली रिमेन्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट कैसे इन्हें बनाया गया। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप। स्ट्रक्चर हमें पता है स्तूपा का क्या है, ठीक है। ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर। अंडा, ये जो गोल वाला है, ठीक है, जो माउंट, इसके ऊपर हर्मिका, एक छोटा सा ऐसे गोल, मतलब एक चोरस बालकनी टाइप। देन ऊपर छतरी, एंड इसको बोलते थे यश। दिस इज द प्रदक्षिण पथ ऑफ द सर्कुलर पाथ। कहीं कहीं जगह पर ये दो भी होते, राइट। दीज आर द तोरन्स। इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर पीछे भी होगा वो, राइट। तो इसी सब चीज की बात की गई है। स्तूपा इज संस्कृत वर्ड मीनिंग अ हीप। इट इज a semicircular mound of earth called Adda. Gradually, it evolved into a complex structure. ठीक है, above the Anda was the Hermica. ये दिखा दिया आपको, this is Hermica. A balcony-like structure represented the abode of the gods. याद रखना, Hermica represented the abode of the gods. Then Yashti दिखा दिया and a Chhatri. Around the moon was a railing separated the sacred space from the secular world. ये ठीक है, अंदर और बाहर वाली दुनिया को सेपरेट करना है। तो आई टोल्ड यू क्यों बनाए गए, क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या स्ट्रक्चर है, एंड कैसे इनका एवोल्यूशन हुआ। द अर्ली स्तूपास वर प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग्स व्हिच रिजेंबल्ड बैम्बू और वुडन फेंस। तो पहले बैम्बू वगैरह वुडन से बनाए गए, धीरे धीरे स्टोन से बनाए गए, धीरे धीरे मोर गेटवेज वर एडेड, मोर circumambulatory paths were added, more sculptures were added, ठीक है। Later the mount came to be elaborately carved with niches and sculptures, right? अब हम बात कर रहे हैं कि भी हमें पता लग गया कि स्तूपा है, ठीक है, ये तो आज हम बात कर रहे हैं। तो भैया लेकिन डिस्कवर कैसे हुआ? डिस्कवरिंग स्तूपास, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। आई टोल्ड यू, मैंने पहले बता दिया था। Amravati in its original or in its pristine form could not be conserved, whereas by God's grace or by the support of the, you can say, the rajas of those time, ठीक है, सांची प्रिजर्व कर लिया गया किसी तरह, ठीक है। Each stupa has a history, and as you just seen, some of these are histories of how they were built, but there are histories of discoveries as well. Let us turn to some of them. In 1796, local Raja who wanted to build a temple stumbled upon the ruins of Stupa at Amravati. He decided to use the stone and thought that there might be some treasure behind. Some years later, a British official named Colin Mackenzie visited the site. यहाँ पर ज्यादा आपको याद नहीं रखना, ये सब नाम याद रखना है कि these are the people who are associated with excavations and archaeology, right? कलिन मैकेंजी पहले आ चुका, वॉल्टर एलियट 2023 प्रीलिम्स में यूपीएससी ने दिया, अलेक्जेंडर री, जेम्स बर्ग्रेस, वॉल्टर एलियट, ठीक है, ये लोग कौन थे? तो अगेन इसी चैप्टर में से सवाल फिर से, ठीक है। He visited Amravati and collected several sculptures and took them away to Madras. These came to be known as Elliot marbles, right? He came to conclusion that the structure at Amravati was one of the largest and most magnificent stupas ever built. By the 1850s, some of the slabs from Amravati had begun taken to different places. बताने की बात यह है कि अमरावती के जो स्लैब्स थे, जो स्टोन्स थे, जो पत्थर थे,
जो यूनिट्स थे वो अलग अलग जगह पर ले जाए गए, ठीक है ना। इस कारण से अमरावती, अभी मैंने बताया कि वो प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। In fact, any new official in the area continued to remove sculptures from the site on the ground that earlier officials had done. Then एक नाम क्या याद रखना है, H. Cole, he is also an archaeologist. ठीक है, इन्होंने कहा था कि भाई क्यों कर रहे हो ये, राइट, why are you taking the the original remains of the stupas, ठीक है, इससे अच्छा है कि आप वहां पर जहां पर आपको चाहिए वहां पर एक कॉपी बना लो इसकी, ठीक है। It seems to me a suicidal and indefensible policy to allow the country to be looted of original works of ancient art. He believed that museums should have plaster cast facsimiles of sculpture, whereas originals should remain. ठीक है, बस इतना इनका व्यू पॉइंट ये था। अनफॉर्चुनेटली उनकी सुनी नहीं किसी ने, ठीक है। Although his plea for in situ preservation was adopted in the case of Sanchi, I told you, Amravati could not be preserved, whereas Sanchi, due to certain reasons, due to certain factors of those times, came to be preserved. Perhaps Amravati was discovered before. Why did Sanchi survive while Amravati did not? Perhaps Amravati was discovered before scholars understood the value of the finds. When Sanchi was discovered, three of its gateways were still standing. Mount was in good condition. A number of factors helped to keep Sanchi as it was, so it stands. Whereas Amravati is now just an insignificant little mount, totally denuded. Right? Then अब हमने स्तूपास की बात कर ली, नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट स्कल्पचर्स कि किस किस टाइप के स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। So we find the stories being written in sculpture. You may have seen wandering storytellers carrying scrolls, charan chitras of cloth or paper with pictures. Okay. So all of these were depicted as sculptures. Right? This is a scene from Visantara Jataka. This is a story about a generous prince who gave away everything to a Brahmin and went on to live in the forest with his wife and children. So number one, what did you find depicted in the sculptures? ठीक है, the stories. ठीक है, ये मेंस में डायरेक्ट सवाल हो सकता है, ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर यू विल बी फाइंडिंग एनरिच्ड कंटेंट फॉर मेंस, तो इसको अच्छे से देख लेना कि भाई स्कल्पचर्स में आपको क्या क्या मिलता है, ठीक है। मोर ओवर ये सुना होगा ना, तो यू विल बी हैविंग हायर चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस थिंग इन द रियल एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या मिलता है, सिंबल्स ऑफ वर्शिप, ठीक है। डिफरेंट सिंबल्स एसोसिएटेड विद बुद्धा यू विल फाइंड देयर, ठीक है। ट्री, many early sculptors did not show Buddha in human form, instead they show through symbols. The empty seat to indicate the meditation of Buddha, stupa to show about the Mahaparinirvan, symbol of wheel stood for the sermon of the Buddha, ठीक है। तो ये सब सिंबल्स भी आपको मिलते हैं, राइट। सो फर्स्टली वॉज स्टोरीज मिलती थी आपको, सेकंड वॉज सिंबल्स ऑफ वर्शिप। In order to understand such symbols, historians have to familiarize themselves with the tradition of those who produce music. ठीक है, देन और कौन कौन सी उस टाइम पे ट्रेडिशंस पॉपुलर थी, या क्या उस टाइम पर लोकल कल्चर पॉपुलर था, उन सब का भी आपको इंडिकेशन स्कल्पचर्स में मिलता है। अदर स्कल्पचर्स एट सांची वर परहैप्स नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडियाज, ये भी यूपीएससी पूछ सकते हैं। देयर वाज कल्चर एट सांची which were not directly influenced by Buddhism. True or false, right? या फिर स्टेटमेंट सही है कि नहीं। These include beautiful women swinging. ये देखिए ना, women swinging. After examining कि भी ये जो the women who is swinging ये कौन है, ठीक है। After examining, they realized that it could be a representation of what is called to be a Shalabhanjika. ये है क्या? According to this was a woman who touched
whose touch caused trees to flower and bear fruit. It is likely that this was regarded as an auspicious symbol and integrated into the decoration of stupa. So, from the other tradition, one of the examples we find was the women swinging, called as Shalabhanjika, right? The Shalabhanjika motive suggests that many people who turned to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist beliefs and practices. और क्या क्या आपको images मिलती है? The other images found were depiction of animals like elephants, horses, monkeys, cattle, jataks containing several animal stories. They were carved to create lively scenes to draw viewers. Plus, there were certain meanings associated to the symbols as well. Example, elephants signified strength and wisdom. Right? Then यहाँ पर बात की गई है कि just like sculpture, just like stupas, painting also told us a lot about the times of those about those times. ठीक है? तो they have given the example of Ajanta painting. Another motive, yes, stupa और sculpture की बात हो रही है, is that of a woman surrounded by lotus and elephant, which seem to be sprinkling water as if performing an abhishek. बस पीछे वाला भी याद रख लोगे काफी रहेगा, ठीक है? बट उसको याद रख लेना क्योंकि that would be either indirectly usable in the means, can be asked in prelims, as well as direct सवाल बन सकता है means में. Serpent is found on several pillars. One of the early modern art historians, याद रखना नाम, James Ferguson is art historian, considered Sanchi to be a center of tree and serpent worship. अब हम बात कर रहे हैं बुद्धिज्म की. When Kushan dynasty came, Kanishka came, fourth Buddhist council held, Buddhism got divided into Heenyan and Mahayana. I told you Heenyan Buddhism was more centered around इंसान को खुद ही लिबरेशन करना है, ठीक है? Whereas Buddha would be worshipped through symbols. Mahayan Buddhism का क्या था कि universal liberation through bodhisattvas as well as image worship or idol. Evidence of the changes in the Buddhist ideas and practices. Early Buddhist teachings had given great importance to self-effort to achieve Nibbana. Besides, Buddha was regarded as a human being who attained enlightenment and Nibbana through his own effort. However, gradually the idea of savior, कि भाई कोई आएगा बचाने, if we consider finally ultimately जो भी आप यूपीएससी का में सपोर्ट ले रहे हो, ठीक है, दैट यू कैन कंसिडर इट एज अ फॉर्म ऑफ महायान बुद्धिज्म कि भी बाहर से आपको ये मटेरियल बचा लेगा, वो कोचिंग बचा लेगी, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज बचा लेगी, ठीक है, बट अल्टीमेटली इट इज यू हु हैव टू सेव योरसेल्फ बाय एग्जीक्यूटिंग व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू यू, ठीक है. सो ऑफ कोर्स Mahayan Buddhism or the philosophy of Mahayan Buddhism or whatever was told will help you in taking your UPSC preparation to a good level. बट अल्टीमेटली अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको हीनियन बुद्धिज्म की वो फिलोसफी कि भाई अल्टीमेटली तो सेल्फ एफर्ट ही चाहिए, ठीक है, वो आपको करनी पड़ेगी. However, gradually the idea of savior emerged. It was believed that he was the one who could ensure salvation. Simultaneously, concept of bodhisattvas also developed. Bodhisattvas were perceived as compassionate beings who accumulated merit through their efforts. इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उस कारण से ये लोग बहुत they have accumulated merit. इनके अच्छे कर्म accumulate हो गए. But they have used this not to attain nibbana and therefore abandon the world, ठीक है, but to help others. बहुत अच्छे काम किए, उससे इन्होंने ये नहीं चाहा कि हमें निभाना मिल जाए, हम इस दुनिया को छोड़ के निकल जाए, ठीक है. रादर दे हैव डिसाइडेड टू स्टे इन द फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है, एंड हेल्प अदर्स अटेन दैट. The worship of images of Buddha and Bodhisattvas became an important part of this tradition. The new way of thinking was Mahayana Buddhism, called as the Great Vehicle. The older one was called as the Lesser Vehicle. देखिए, महायान वालों ने पुराने वाले को बोला हीनयान, ठीक है,
वेयर एज जो हीनियन वाले थे या फिर जो ओरिजिनल थे, वो कहते थे कि वी आर नॉट हीनियन बट वी आर थेरावाडिन्स, राइट? Supporters of Mahayana regarded other Buddhist followers as Hinian. However, followers of older tradition described themselves as Theravadins. ठीक है? तो अगर हम देखें बुद्धिज्म, Hinian and Theravadins are one thing, Mahayana is another thing, and एक और आती है वज्रयान. ठीक है? That is another thing. Those who followed the path of old respected the teachers, the Theras. Right? अब यहाँ पर बात चल रही है. We've almost reached up to, you can say, सीई में प्रवेश कर रहे हैं हम, जहाँ पर महायान बुद्धिज्म और वो सब आने लगा. ठीक है? तो ब्राह्मणिज्म विल ऑल्सो फील द नीड कि भाई यहाँ तो पेट्रनेज भी बुद्धिज्म जैनिज्म को मिल रहा है. ठीक है, लोग भी इनसे जुड़ते जा रहे हैं, एंड हाउ डू वी रिवाइव आवरसेल्फ. ठीक है, तो एंड बिकॉज दे फेल्ट दैट one of the reasons for their decreased popularity या फिर association with people was the extreme stance they have taken या फिर the rigidity or the conservatism in them. तो धीरे धीरे हिंदुइज्म या ब्राह्मणिज्म ये अपने आप को चेंज करेंगे. The notion of savior was not unique to Buddhism. We find similar ideas being developed in different ways within tradition, which included Vaishnavism. कि भाई छोड़ो पुरानी बातें. द न्यूअर फॉर्म इज कि आप भगवान विष्णु की बस पूजा करो या फिर भगवान शिव की पूजा करो. ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन द वर्शिप ऑफ द चोजन डेटी. In this, the bond between the devotee and the god was visualized as that of love and devotion. ठीक है. अब अलग अलग जगह पर अलग अलग विष्णु के अवतार या फिर यू कैन से द वर्शिप ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विष्णु इज इमर्जिंग. उड़ीसा में कुछ, ठीक है, डाउन साउथ कुछ, नॉर्थ में कुछ, नॉर्थ ईस्ट में कुछ, कश्मीर में कुछ, इधर कुछ उधर कुछ. ठीक है, तो इन्होंने कहा ये जो सब जो ओरिजिन हो रहे हैं या फिर दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ अ यूनिफाइड एंटिटी कॉल्ड विष्णु. ठीक है. In the case of Vaishnavism, cults developed around various avatar or incarnations. 10 avatars were recognized. These were the forms that the deity was believed to have assumed to save the world whenever it was threatened by destruction. It is likely that different avatars were popular in different parts of the country. ये line important है. Recognizing each of these local deities as a form of Vishnu was one way of creating a more unified religious tradition. ठीक है, आज हमें लगेगा कि ऐसे ऐसे हुआ, बट यूजुअली क्या होता है, वेन एवर अ पर्टिकुलर रिलीजन, इट कैन बी एनी रिलीजन, ठीक है, इट फील्स कि भाई इट्स इंपॉर्टेंस इज डिक्लाइनिंग, तो इट विल ट्राई एंड फाइंड न्यू वेज टू री इन्वेंट इटसेल्फ एंड एस्टैब्लिश इटसेल्फ. ठीक है. Some of these forms were represented in sculptures like Shiva represented by Linga. He was also represented in human form. All such representations depicted a set of ideas about deities and their attributes like headdresses, ornaments, and ayodhyas, or ayodhyas are weapons or auspicious objects. So they were represented along with their symbols. There are different stories behind them, which is contained in the Puranas. Generally, they were written in simple Sanskrit verse. Contrary to the Vedas, Puranas were written in simple Sanskrit, which was meant to be read aloud to everybody, including women and children. Right? So you will see the approach of Brahminical Hinduism is getting diluted. It is becoming more liberal, lesser conservative. Right? Much of what is contained in the Puranas evolved through interaction among people, priests, merchants, and ordinary men and women who traveled from place to place. धीरे धीरे अब मंदिर भी बनने लगेंगे. ठीक है. Around the time when the stupas at sites such as Sanchi were acquiring their present form मतलब the most complicated or the most advanced form. तो stupas का most advanced form, that is the post-modern times, is the time when temples started in their most pioneer form. ठीक है, या the first form. ठीक है. And this is during the time of Gupta. The first temples to house images of gods and goddesses
Just like Buddhism has transformed itself into Mahayan Buddhism, saying that कि भगवान की पूजा करो, भगवान बुद्ध की पूजा करो. Vaishnavism, oh sorry, Brahminical Hinduism had diluted, and it had said it is focusing on Vaishnavism and Shaivism, and it is saying कि एक particular deity की image की पूजा करो. ठीक है. The early temple was, then this talks about the evolution of temple. ठीक है. Temple architecture आपको culture में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. कि Nagara style, Dravida style, Vesara style, and all these different types. तो यही सब बताया हुआ. शिखरा, विमान, गर्भगृह. They were also decorated with sculpture. Later temples also became more elaborate with assembly halls, manda, huge walls, gopurams and gateways and all these things, an arrangement for supplying water. ठीक है. One of the unique features of early temples was कि वो cave में से बना लिए जाते थे. Then structural temples started to be built, right? Rath temples भी बने. And this gradual evolution, अगर एक डायनेस्टी की बात करें तो पल्लवाज में बहुत देखने को मिली. राइट फ्रॉम केव टेम्पल्स टू रथ टेम्पल्स टू स्ट्रक्चरल टेम्पल्स टू मिनी टेम्पल्स, ये पल्लवाज में आपको देखने को मिली. द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव्स वाज एन ओल्ड वन. तो केव टेम्पल्स की बात हुई. देन फाइनली जो इसका मोस्ट यू कैन से द फिनिश्ड फॉर्म, वो कहाँ पर दिखा, कार्विंग आउट एन एंटायर टेम्पल फ्रॉम अ पर्टिकुलर रॉक इन द कैलाशनाथ इन द एलोरा केव्स. देन ये बात करता है कि भाई ये जो आज हमें दिख रहा है क्या ये सब कुछ है. राइट, ऑफ कोर्स इट इज नॉट एवरीथिंग. We have seen that much has been destroyed and lost over the centuries. What remains and what has been preserved conveys only a sense of the vision of the artist. ठीक है. बहुत ऐसी चीजें थी जो समझ नहीं आ रहा था है क्या. ठीक है. When 19th century European scholars first saw some of the sculptures, they could not understand what these were about. ठीक है. Gradually इनको ऐसे लगा कि यार this is related with something with कि ग्रीक इन्फ्लुएंसेस में देखने को मिल रहा है. ठीक है. They tried to make sense by comparing them with the sculpture from ancient Greece. While they found Indian sculpture inferior, they were very excited when they discovered images of Buddha and Bodhisattva based on Greek models. ज़्यादा कुछ इसमें important नहीं. It is all telling कि sculptures का decipherment कैसे हो. ठीक है ना. And how did uh, what was the colonial view about it. ठीक है ना. They were relating it to Greek models. Then another is they are saying, consider another problem. We have seen that art historians often draw upon textual traditions to understand the meaning of sculpture. एक तरीका आपने कंपेयर कर लिया था, ये स्कल्पचर ये ग्रीक स्कल्पचर के अकॉर्डिंग लग रहा है. एक तरीका ये है, लेकिन दैट वुड नॉट बी अ वेरी राइट मेथड. ठीक है ना. हो सकता है वो बाई चांस कंपेयर हो रहा है या फिर ये आपका व्यू है. ठीक है. अनदर वे कैन बी स्कल्पचर में जो चीज लिखी गई है उसके बेसिस पर आप डिसाइड करो कि भाई ये स्कल्पचर क्या कहना चाह रहा है, किसके बारे में है, व्हाट डज इट वांट टू से. ठीक है. लेकिन ये वाली जो चीज है बेस्ड ऑन टेक्स्ट एंड इमेज, इट इज नॉट सो ऑलवेज इजी टू यूज. वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिगिंग एग्जांपल्स ऑफ दिस इज द महाबलीपुरम में जो स्कल्पचर है. ठीक है. वहां पर क्या एक स्कल्पचर है जिसको कुछ लोग कहते हैं इट इज द डिसेंट ऑफ द गैंजेस. राइट. कि भाई गंगा नदी it is coming from its source. Some feel that this depicts the descent of the river Ganges from heaven, the natural source, whereas some others say that this represents a story from Mahabharata where Arjuna is doing penance on river bank in order to acquire arms, pointing it to the central figure of the set. So उस sculpture के basis पर whether it is the descent of the Ganges or Arjuna's penance वो clear नहीं है. Right. ठीक है ना. सो टू वेज वन कैन बी, यू कैन से कि भाई कंपेयर इट विद ग्रीक स्कल्पचर जो यूरोपियंस ने किया. अदर वे कैन बी यू कैन रिलेट द इमेज एंड द टेक्स्ट, जिसमें लेकिन कुछ इश्यूज है कि एम्बिग्विटी आ सकती है, जिसका एक एग्जांपल इन्होंने दिया ये. ठीक है. ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ये लास्ट वाले पार्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. ठीक है. यहाँ से
दिस वाज नॉट मच इम्पोर्टेंट, बट स्टोरी मैंने आपको बता दी। बस ये वर्ड याद रख लेना, इसका मतलब क्या है। ग्रोटेस्क, right? This means Greek. Then, finally, remember that many rituals, religious beliefs, and practices were not recorded as obvious in a permanent, visible form. These included daily practices as well as some special occasion. Many may have not felt the need to keep the lasting records. In fact, the spectacular instances we have just focused are just the tip of the iceberg, right? So we have discussed all these. ये सब टाइमलाइन बताइए कब कौन सा कंपाइल हुआ, ये सब we have discussed. ठीक, ये एक थोड़ा सा ध्यान रख लेना, Alexander Cunningham published the Bilsatos, one of the earliest works on sunshine. Then John Marshall and Alfred Boucher are associated with this particular thing. Then ये एक इंस्क्रिप्शन के बारे में बात की, महाराजा कुश अकुशान रूलर, याद रखना है इतना, भिखुनी धनवती, ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड थीम 1. So we have completed sixth history and we have also completed the theme 1 ancient history is completed. Okay, next we will be starting with the medieval history, right? Do acknowledge and recognize the importance of these books. These 6 books, I would say, or I would say 5 books, okay, to be very exact. Theme 3 इतनी important नहीं है वो भी इतनी important नहीं है. Sixth NCERT are past 1, theme 1, 7th NCERT are past 2, theme 2, and 8th NCERT are past 3, and of course theme 3. स्टूडेंट्स को यूजुअली दिक्कत आती है इन बुक से कि भाई पढ़ना क्या है, क्योंकि पहली बात क्रोनोलॉजिकल सेंस में नहीं मिल रहा कुछ, सेकेंडली ये पता नहीं चल रहा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। द बेस्ट वे टू डू दैट इज समवन टेलिंग यू कि ये इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, नाउ यू नो द स्टोरी, नाउ यू नो एवरीथिंग कि भाई क्या है इसमें, वी जस्ट हैव टू रिवाइज व्हाटएवर हैज बीन हाइलाइटेड, राइट। So we are done with ancient history. Next, we'll be continuing with the medieval history, right?